بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، میں اس ویڈیو میں آج آپ کو ہاذا، ہوا اور نہنا کے بارے میں بتاؤں گا کہ اس کو کہاں، کب اور کیسے استعمال کیا جاتا ہے۔ دوستوں، اس ویڈیو میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملنے والا ہے، اس لیے برائے مہربانی ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ اور جو لوگ بھی ہمارے چینل پہ نئے ہیں یا پرانے ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ میرے بھائی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ تو چلیے ویڈیو کو ہم شروع کرتے ہیں۔ ہاذا، ہاذا یا ہادا، لوگ ہاذا بھی بولتے ہیں اور ہادا بھی بولتے ہیں۔ ہادا یا ہاذا کا مطلب ہوتا ہے یہ یا اس۔ ہوا کا مطلب ہوتا ہے وہ یا اس۔ نہنا کا مطلب ہوتا ہے ہم یا ہمیں۔ ہاذا امسک، یہ پکڑو یا اسے پکڑو۔ ہاذا امسک، ہاذا امسک، یہ پکڑو یا اسے پکڑو، یہ پکڑو یا اسے پکڑو۔ ہاذا کا یہاں یہ کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے اور اسے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ ہندی میں ہم یا اردو میں بولتے ہیں اسے پکڑو یا یہ پکڑو، اس کو پکڑو کہتے ہیں نا، لیکن عربی میں صرف ایک ہی الفاظ ہے، ہاذا امسک، ہاذا امسک۔ ہاذا یا ہادا، لوگ ہادا بھی بولتے ہیں، لوگ ہاذا بھی بولتے ہیں۔ کچھ لوگ ہادا بولتے ہیں، کچھ لوگ ہاذا بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے ہاذا امسک یعنی یہ پکڑو یا اسے پکڑو۔ امسک، امسک کو پکڑنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اور جام کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ جام کیا جاتا ہے کوئی چیز، اس کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ ہاذا انا، ہاذا انا، یہ میرا ہے۔ ہاذا انا، یہ میرا ہے یا یہ ہمارا ہے۔ ہم ہندی میں یا اردو میں بولیں گے یہ میرا ہے یا یہ ہمارا ہے۔ کچھ بھی ہو، سامان ہو، کتاب ہو، پین ہو، کاپی ہو، گھر ہو، کچھ بھی رہے گا تو آدمی کہتا ہے یہ میرا ہے یا یہ ہمارا ہے، ٹھیک۔ لیکن عربی میں صرف ایک ہی الفاظ ہے، ہاذا انا۔ ہاذا انا ہم بول دیں گے تو یہ میرا ہے یا یہ ہمارا ہے، یہ دونوں کے لیے ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ ہاذا بولیں یا ہادا بولیں، ہاذا یا ہادا، اپنا اپنا بولنے کا سلیقہ ہے۔ کچھ لوگ ہادا بھی بولتے ہیں، کچھ لوگ ہاذا بھی بولتے ہیں۔ تو یہ میرا ہے یا ہمارا ہے کے لیے ہاذا انا یعنی یہ میرا ہے، یہ ہمارا ہے، دونوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاذا کلو اغراض خربان، ہاذا، ہاذا کلو اغراض خربان، اغراض خربان۔ ہاذا کا مطلب یہ، کلو کا مطلب سب، کلو کا مطلب سب۔ اغراض کو سامان کہتے ہیں، سامان، سامان کو عربی میں اغراض کہتے ہیں، سامان کو عربی میں اغراض کہتے ہیں۔ ویسے سامان بھی بولا جاتا ہے تو عربی کے لوگ سمجھتے ہیں کہ سامان کیا چیز کو بول رہے ہیں۔ سامان کو سامان وہ لوگ بھی بول لیتے ہیں، کہتے ہیں، جیسے ہمارا کفیل ہے وہ سامان بھی بولتا ہے اور اغراض بھی بولتا ہے۔ اور خراب کو خربان کہتے ہیں، خراب کو خربان کہتے ہیں۔ ہاذا کلو اغراض خربان یا ہاذا کلو اغراض خربان، یہ سب سامان خراب ہے، یہ سب سامان خراب ہے یا یہ سارا سامان خراب ہے۔ کلو کا مطلب سب یا سارا، دونوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ سب سامان خراب ہے یا سارا سامان خراب ہے۔ ہاذا مکان اسمک، ہاذا مکان اسمک، آدمی کسی سے پوچھتا ہے کہ ہاذا مکان اسمک یعنی اس جگہ کا نام کیا ہے، اس جگہ کا نام کیا ہے۔ تو عربی میں یہی کہے گا، ہاذا یا ہاذا مکان اسمک، مکان اسمک یعنی اس جگہ کا نام کیا ہے۔ ہاذا کا مطلب یہ یا اس ہوا، یہاں پہ اس جگہ کے لیے، اس کے لیے ہاذا کا استعمال کیا گیا ہے۔ اب یہ آپ بول سکتے ہیں، ہندی میں بولیں گے یہ جگہ کا نام کیا ہے یا اس جگہ کا نام کیا ہے، تو یہ جگہ کا نام تو آدمی نہیں کہتا، یہی کہے گا اس جگہ کا نام کیا ہے۔ لیکن عربی میں ہاذا مکان اسمک یعنی اس جگہ کا نام کیا ہے یا یہ جگہ کا نام کیا ہے، آپ جو چاہیں اپنے من میں ٹرانسلیٹ کر لیں کہ ہاذا مکان
इस मक्का, इस जगह का नाम क्या है, या यह जगह का नाम क्या है। ठीक, मकान को जगह कहते हैं, मकान, मकान यानी जगह, मकान मतलब महल नहीं, मकान मतलब जगह। हादा सुगुल मा इमसी, हादा, हादा सुगुल मा इमसी। अब यहाँ देखिए, हादा को इससे, इससे, इससे काम नहीं चलेगा, इससे के लिए इस्तेमाल किया गया है। हादा सुगुल मा इमसी यानी इससे काम नहीं चलेगा। आदमी कहता है इससे काम नहीं चलेगा, ये चीज़ से काम नहीं चलेगा, ये सामान ले जाओ, इससे काम नहीं चलेगा, आदमी कहता है तो कहेगा हादा सुगुल मा इमसी, हादा सुगुल मा इमसी। हादा का मतलब इससे और सुगुल का मतलब काम, माँ का मतलब नहीं। यहाँ पे माँ के जगह पे आप ला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ला का मतलब भी नहीं होता है और माँ का मतलब भी नहीं होता है। यहाँ हम माफ़ी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए कि अगर माफ़ी का इस्तेमाल करेंगे तो इसका तर्जुमा हो जाएगा इससे काम नहीं चलेगा है, इससे काम नहीं चलने वाला है, चलने वाला है, इससे काम नहीं चलने वाला है, तो तर्जुमा बदल जाएगा। इसलिए हादा सुगुल मा इमसी, इससे काम नहीं चलेगा। ये दोनों तर्जुमा हो जाएगा, मैंने जो बताया है वो भी हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको माफ़ी का इस्तेमाल करेगा। जब माफ़ी का इस्तेमाल करेंगे तब वो होगा था इससे काम नहीं चलने वाला है, और माँ कहेंगे तो इससे काम नहीं चलेगा। हादा बेत इंतरो, हादा, हादा बेत, हादा बेत इंतरो, इंतरो। हादा का मतलब इसके और बेत का मतलब घर, इंता का मतलब तुम। इंता तुम, आप, आपके लिए इस्तेमाल किया जाता है। इंता, इंता। औरत के लिए इंती का इस्तेमाल करेंगे, लोग इंता भी कहते हैं और अंता भी कहते हैं, अंता भी कहते हैं और इंता भी कहते हैं। तो दोनों का मतलब तुम, आप, आपका या तुम्हारा इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। रूह मतलब जाओ, रूह का मतलब जाओ, जाने के लिए रूह का इस्तेमाल किया जाता है। तो हैदा बेत इन तरो यानी इसके घर तुम जाओ, इसके घर तुम जाओ, इसके घर तुम जाओ। हुआ मकान खरबान, हुआ मकीना खरबान, हुआ मकीना खरबान यानी वह मशीन ख़राब है, वह मशीन ख़राब है। हुआ का मतलब वह होता है। देखिए उर्दू में लिखेंगे ना, अरबी में, तो हा और वाव, हा के ऊपर पेश होता है और वाव, वाव के बाद अलिफ होता है। हुआ, हुआ, हुआ। लेकिन लोग हुआ नहीं बोलते हैं, हुआ बोलते हैं, ठीक है, हुआ बोलते हैं सीधा सीधा। तो हुआ मकीना खरबान, वह मशीन ख़राब है। तो हुआ का मतलब वह या उस, वह के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और उसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। हुआ मकीना खरबान, वह मशीन ख़राब है। यहाँ उस नहीं लगा सकते, इसलिए कि उस मशीन ख़राब है, ऐसे तो आदमी कहेगा नहीं, यही कहेगा वह मशीन ख़राब है। तो अरबी में कहेगा हुआ मकीना खरबान, हुआ मकीना खरबान यानी वह मशीन ख़राब है। कोई भी मशीन हो तो वह मशीन ख़राब है। हुआ मकीना माफ़ी शुगुल, हुआ मकीना माफ़ी शुगुल, वह मशीन काम नहीं करती, वह मशीन काम नहीं करती, वह मशीन काम नहीं करती। हुआ मकीना माफ़ी शुगुल, वह मशीन काम नहीं करती है, वहाँ काम नहीं करती है। यहाँ कि माफ़ी यहाँ पे नहीं होगा, हुआ मकीना मा शुगुल, हुआ मकीना मा शुगुल, वह मशीन काम नहीं करती, वह मशीन काम नहीं करती। या वह मकीना माफ़ी, हुआ मकीना माफ़ी शुगुल, माफ़ी शुगुल अगर हम कहेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा वह मशीन नहीं चलता है, नहीं काम करता है, वह मशीन काम नहीं करता है, वह मशीन काम नहीं करता है। हुआ मकीना माफ़ी शुगुल, वह मशीन काम नहीं करता है। और अगर हुआ मकीना मा शुगुल कहेंगे तो वह मशीन काम नहीं करता, वह मशीन काम नहीं करता। यहाँ पे है, फी अगर लगेगा तो है आ जाएगा, फी हटेगा तो है चला जाएगा। हुआ खज़ान, हुआ खज़ान माफ़ी डीज़ल, हुआ खज़ान माफ़ी डीज़ल, माफ़ी डीज़ल। डीज़ल मतलब गाड़ी जिससे चलता है ऑयल से, तेल से, उसको डीज़ल कहते हैं। इंग्लिश में या हिंदी में लोग डीजल कहते हैं, डीजल, लेकिन अरबी में डीज़ल कहते हैं, डीज़ल। हुआ खज़ान माफ़ी डीज़ल यानी उस टंकी। अब यहाँ हुआ उस के लिए इस्तेमाल किया गया है,
उस यहाँ पे अरबी जब हम उर्दू में ट्रांसलेशन करेंगे तो यहाँ हुआ का मतलब उस आएगा। उस टंकी में डीजल नहीं है। अगर आप वह टंकी में डीजल नहीं है कहेंगे तो भी चल सकता है, लेकिन जो सेंटेंस सही होता है उसको लिया जाता है। तो उस टंकी में डीजल नहीं है, यानी हुआ खजान माफी डीजल, हुआ खजान माफी डीजल, हुआ खजान माफी डीजल, यानी उस टंकी में डीजल नहीं है, उस टंकी में डीजल नहीं है। हुआ तरतीब, हुआ तरतीब या हुआ तजदीद, हुआ तरतीब या हुआ तजदीद, उसे बनवाना है, उसे बनवाना है, बनवा दो, उसे बनवाना है, अब बनवा दो। हुआ का मतलब वह उसे, और तरतीब का मतलब बनवाना है या बनवा दो। तरतीब का मतलब बनवाना है या बनवा दो, या तजदीद का मतलब भी वही होता है और तरतीब का मतलब भी वही होता है, सेम टू सेम। हुआ तरतीब उसे बनवाना है, हुआ तजदीद उसे बनवा दो। ठीक, ये तरतीब भी बनवाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बनाने के लिए, बनवाने के लिए, और तजदीद भी बनवाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो हुआ तरतीब उसे बना दो, यानी उसे सही करा दो, ठीक करा दो। हुआ तजदीद उसे ठीक करा दो, कुछ ख़राब है तो उसको सही कर दो, उसको ठीक कर दो। हुआ तरतीब या हुआ तजदीद। हुआ अखु ताबान, हुआ अखु ताबान, हुआ अखु ताबान। हुआ मतलब अब यहाँ उसका भाई बीमार है, यहाँ पे यह नहीं कर सकते वह भाई बीमार है। ठीक है, हुआ अखु ताबान, यहाँ पे मतलब उसका भाई बीमार है के लिए तर्जुम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर हम कहें कि वह भाई बीमार है तो भी चलेगा, तो भी यही इस्तेमाल करेंगे। अगर वह भाई बीमार है, आदमी कहेगा वह भाई बीमार है, उसके लिए भी हम हुआ अखु ताबान का इस्तेमाल करेंगे। हुआ अखु ताबान, वह भाई बीमार है या उसका भाई बीमार है। ठीक, उसके लिए, दोनों के लिए हम यही इस्तेमाल करेंगे, हुआ अखु ताबान। हुआ का मतलब वह या उसका, और अखु का मतलब भाई होता है, अखु का मतलब भाई होता है। बहन को उख्ती कहते हैं, बहन को उख्ती कहते हैं, और बीमार को ताबान कहते हैं, बीमार को ताबान कहते हैं। ताबान, ताबान मतलब बीमार। हुआ अखु ताबान, उसका भाई बीमार है या वह भाई बीमार है। हुआ माफ़ी बेतरोह, हुआ माफ़ी बेतरोह, उसके घर नहीं जाना है। हुआ माफ़ी बेतरोह, उसके घर नहीं जाना है। या हुआ माफ़ी वह घर नहीं जा रहा है, वह घर नहीं जा रहा है, ये भी इसका तर्जुमा होगा, वह घर नहीं जा रहा है या उसके घर नहीं जाना है। ठीक है, अरबी का एक सेंटेंस ऐसा बोला जाता है ना कि उसका तर्जुमा कई होता है, लेकिन मरहला क्या है, समय क्या है, वक्त क्या है, उसके हिसाब से आदमी तर्जुमा करता है कि ये सेंटेंस जो बोला गया है वो उसका तर्जुमा यहाँ पे क्या फिट बैठेगा, है ना। अभी अक्ल का मतलब खाना होता है, अक्ल का मतलब खाना होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर समझ लीजिए, अक्ल का मतलब खाना होता है। अगर हम खाना खा रहे हैं तो भी कोई पूछेगा कि क्या कर रहे हो, तो आदमी कहेगा अना अक्ल, यानी मैं खाना खा रहा हूँ। अगर हम खाना लिए हैं, कोई पूछ दिया कि क्या लिए हो, तो भी आदमी कह सकता है अक्ल, यानी खाना लिया हूँ। ठीक, अगर खाने जा रहे हैं तो भी पूछ देगा आदमी कहाँ जा रहे हो, तो कह देगा अना अक्ल, यानी खाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो ठीक उसी तरह से जिस वक्त और समय देख करके इसका तर्जुमा किया जाता है। ठीक है, जैसे फिर हुआ नफ़र इकामा खल्लास, हुआ नफ़र इकामा खल्लास, ने उस आदमी का इकामा खल्लास हो गया है, उस आदमी का इकामा खल्लास हो गया है, या उस आदमी का इकामा ख़त्म हो गया है। ख़त्म को का मतलब खल्लास होता है। खल्लास यहाँ अरबी में ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं, कोई भी काम आदमी कर रहा है और ख़त्म हो गया तो खल्लास, तो खल्लास। खाना खा लिया तो खल्लास, खल्लास। काम ख़त्म कर दिया खल्लास, खल्लास। यानी कुछ भी है, आपसे अगर कोई काम करने के लिए बोला तो आदमी बोलेगा खल्लास, यानी खल्लास। हुआ नफ़र मुमकिन माईजी, वह आदमी शायद नहीं आएगा। हुआ नफ़र
हुआ नफ़र मुमकिन मा इजी, मुमकिन मा इजी, हुआ नफ़र मुमकिन मा इजी, यानी वह आदमी शायद नहीं आएगा, वह आदमी शायद नहीं आएगा। अब आदमी हाथ से इशारा करके भी कहता है, या ऐसे सर को अपने मुंडी को हिला करके आँख के इशारे से भी किसी को बताता है कि वह आदमी ना, ठीक है, तो वह आदमी मुमकिन शायद नहीं आएगा, तो अरबी में कहेगा हुआ नफ़र मुमकिन माइजी, हुआ नफ़र मुमकिन माइजी। हुआ का मतलब वह, नफ़र का मतलब आदमी, और मुमकिन मतलब शायद, मुमकिन मतलब शायद जहाँ सस्पेंस वाली बात रहती है ना, तो वहाँ पे मुमकिन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। माँ का मतलब नहीं और इजी का मतलब आएगा, वह आदमी शायद नहीं आएगा, हुआ नफ़र मुमकिन मा इजी। नहनु बेत रोह, नहनु, देखिए यहाँ नहनु भी कहते हैं, नहना भी कहते हैं, या अहना भी कहते हैं, सेम अल्फाज है, लेकिन बोलने का तरीका तीन है, नहना, नहनु या अहना भी कह सकते हैं, नहना भी कहेंगे या नहनु भी कहेंगे। ये तीनों अल्फाज को हम इस्तेमाल कर सकते हैं कहीं, उसका तर्जुमा सिर्फ वही मिलेगा, हमें के लिए नहनु, नहना या अहना का इस्तेमाल किया जाता है। और बेत का मतलब घर होता है, बेत का मतलब घर होता है, और जाने के लिए रूह का इस्तेमाल किया जाता है। जाना है कहीं तो कहेंगे रूह, अना रूह यानी मैं जा रहा हूँ, तो नहनु बेत रूह हमें घर जाना है, या अहना बेत रूह हमें घर जाना है, या नहना बेत रूह हमें घर जाना है, तो बेत रूह यानी घर जाना है। नहनु बेत सुगुल सवी, नहनु बेत या अहना बेत सुगुल सवी, हमें घर पर काम करना है, हमें घर पर काम करना है, घर पर काम करना है, यानी नहनु का मतलब हमें, और बेत का मतलब घर, और सुगुल का मतलब काम होता है। काम के लिए सुगुल का भी इस्तेमाल करते हैं, अमल का भी इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा, आपको यहाँ पे जो लोग भी सऊदी में काम करते हैं उनको आमिल कहते हैं। आमिल का मतलब काम करने वाला, तो आमिल यानी काम करने वाला, तो काम क्या करेगा, तो आमिल यानी अमल यानी अमल कर रहा है, काम कर रहा है, ठीक, तो उसको आमिल कहते हैं। तो सुगुल सवी यानी काम करना है, तो अमल सवी भी कह सकते हैं, सुगुल सवी भी कह सकते हैं, लेकिन अक्सर लोग सुगुल का ही इस्तेमाल करते हैं। नहनु बेत सुगुल सवी या सुगल सवी लोग कह देते हैं। हमें घर पर काम करना है, हमें घर पर काम करना है। हुआ रज्जाल नहनु अबगा, हुआ रज्जाल नहनु अबगा, वह आदमी हमें चाहिए, हुआ रज्जाल नहनु अबगा, वह आदमी हमें चाहिए। दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मशक्क़त उठानी पड़ती है, बहुत तकलीफ़ उठानी पड़ती है, और बहुत मेहनत कर के वीडियो बनाया जाता है। इसलिए मेरे भाई आपसे मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर हमारे चैनल पे नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो लोग देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। भाई अगर नहीं पसंद आती है तो आप अनलाइक कर दें, तो आप डिसलाइक कर दें। डिसलाइक करेंगे तो भी हमें मालूम होगा कि चलो भाई हमारे वीडियो को इतने लोगों ने पसंद नहीं किया है, ठीक है, या लाइक करेंगे तो हमें खुशी होती है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। सबा का मतलब साथ। एक बार अगर कहना है सबा, यानी किसी के साथ आप जा रहे हैं तो कहेंगे, एक बार कहेंगे सबा। अगर दो आदमी साथ हैं तो कहेंगे सबा यानी साथ हैं। दो चीज़ अगर अलग अलग है उसको कहेंगे लहालो यानी अलग अलग है। एक चीज़ है अगर या उसको कहना है कि अलग रख दो तो उसमें कहेंगे लहालो, ठीक। मर्रा का मतलब बार बार होता है, ठीक है। एक मर्रा का मतलब महंगा भी होता है, बहुत भी होता है, ठीक है। जैसे मर्रा गाली यानी बहुत महंगा है, उसके लिए भी मर्रा इस्तेमाल करते हैं।
लेकिन मर्रा मर्रा का मतलब बार बार होता है। मर्रा मर्रा का मतलब बार बार होता है। कोई आदमी काम लगातार करता है तो उसको कहते हैं बार बार एक काम मत करो, तो मर्रा मर्रा उसको कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कुल्लू अगरात, कुल्लू अगरात सबा सबा रकीब, कुल्लू अगरात सबा सबा रकीब, यानी सारा सामान साथ साथ रखो। आदमी कहता है ना कुल्लू अगरात सबा सबा रकीब, इसका अरबी हुआ आदमी हिंदी में कहता है कि सारा सामान साथ साथ रखो। अगर आपका कफील या कोई भी आदमी अगर आपसे कहे कि सारा सामान साथ साथ रखो, तो अरबी में कैसे कहेगा? कुल्लु अगरात, कुल्लु अगरात सबा सबा रकीब, कुल्लु अगरात सबा सबा रकीब। ये सामान रखने का हुआ। अगर ज़्यादा आदमी है और कहेंगे सब लोग एक साथ बैठो, हैं, तो वहाँ पे भी आदमी कह सकता है सबा सबा, हैं, कुल्लु नफ़र सबा सबा इजलिस, कुल्लु नफ़र सबा सबा इजलिस, यानी सारे लोग, सब लोग साथ साथ बैठो, सब आदमी साथ साथ बैठो। जैसे हम सब साथ साथ हैं, हम सब साथ साथ हैं, हम सब साथ साथ हैं, तो क्या कहेंगे? अना कुल्लू सबा सबा मौजूद, अना कुल्लू, अना कुल्लू, अना का मतलब मैं, हम, कुल्लू मतलब सब, सबा सबा मतलब साथ साथ, मौजूद मतलब मौजूद हैं। अना कुल्लू सबा सबा मौजूद, हम सब साथ साथ हैं, हम सब साथ साथ हैं। देखिए मौजूद प्रेजेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, प्रेजेंट में जो होता है उसके लिए मौजूद इस्तेमाल किया जाता है। अभी हमारे पास पैसा है तो हम कहेंगे अना इन दी फ्लूस मौजूद, इन दी फ्लूस मौजूद, यानी मेरे पास पैसा मौजूद है। ठीक है, ठीक उसी तरह से अना कुल्लू सबा सबा मौजूद, यानी हम सब साथ साथ हैं, हम सब साथ साथ हैं। अना कुल्लू सबा सबा मौजूद, हम सब साथ साथ हैं। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल है सब लोग अलग अलग खड़े हो जाओ, सब लोग अलग अलग खड़े हो जाओ। ज़्यादा आदमी रहता है तो जगह नहीं है बैठने को या कुछ भी, तो आदमी कहता है सब लोग खड़े हो जाओ, तो सब लोग अलग अलग खड़े हो जाओ। तो कुल्लू नास, कुल्लू, कुल्लू मतलब सब, नास का मतलब लोग, लहालो, लहालो का मतलब अलग अलग होता है, लहालो का मतलब अलग, लहालो लहालो मतलब अलग अलग, और खड़े होने को अस्कित कहते हैं, खड़े होने को अस्कित कहते हैं। अगर आप जहाँ रहते हैं अगर उसको अगर दूसरा कुछ भी कहा जाता हो तो बराए मेहरबानी हमको कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि खड़े होने को आप जहाँ रहते हैं वहाँ क्या बोला जाता है। ठीक, कुल्लु नास लहालो लहालो अस्कित, यानी सब लोग अलग अलग खड़े हो जाओ, सब लोग अलग अलग खड़े हो जाओ। कुल्लु नास लहालो लहालो अस्कित। फिर तीसरा है एक ही गलती बार बार ना करो, एक ही गलती बार बार ना करो। आदमी कहता है किसी से कि एक ही गलती बार बार ना करो, तो कैसे कहेगा अरबी में? वाहिद, वाहिद मतलब एक, गलतान मतलब गलती, मर्रा मर्रा मतलब बार बार, माँ मतलब ना, सौवी मतलब करो, यानी वाहिद गलतान मर्रा मर्रा माँ सौवी। माँ की जगह पे आप ला भी लगा सकते हैं। तो एक ही गलती बार बार ना करो, इसमें हम माफ़ी नहीं इस्तेमाल कर सकते, ऐसे सेंटेंस में माफ़ी नहीं इस्तेमाल कर सकते। इसलिए माफ़ी का मतलब होता है नहीं है, नहीं है, यहाँ नहीं है नहीं हो पाएगा, नहीं सिर्फ है। तो वाहिद गलतान मर्रा मर्रा मासवी, यानी एक ही गलती बार बार ना करो, या एक ही गलती बार बार नहीं करो, या एक ही गलती बार बार मत करो को अरबी में कहेंगे वाहिद गलतान मर्रा मर्रा मासवी। कुल्लु मलाबिस लहालो लहालो गसील, कुल्लु मलाबिस लहालो लहालो गसील, यानी सारा कपड़ा अलग अलग धोना, सारा कपड़ा अलग अलग धोना। यहाँ लॉन्ड्री के अंदर लोग जाते हैं कपड़ा गसील करवाने, वॉशिंग करवाने, तो लोग कहते हैं कि कुल्लु मलाबिस लहालो लहालो गसील, यानी सारा कपड़ा अलग अलग धोना, सब कपड़ा अलग अलग धोना। आप भी ऐसे कह सकते हैं सब कपड़ा अलग अलग धोना, या सब सामान अलग अलग रखो, या सब लोग अलग अलग बैठो, इस तरह से आदमी कह सकता है। तो कुल्लु मलाबिस लहालो लहालो गसील,
यानी सारा कपड़ा अलग अलग धोना। सब लोग अलग अलग बैठो, यानी कुल्लु नास लहालो लहालो इजलिस, लहालो लहालो इजलिस यानी सब लोग अलग अलग बैठो। सब आदमी अलग अलग बैठो, यानी कुल्लु नफर लहालो लहालो इजलिस, लहालो लहालो इजलिस। इस तरह से आदमी कह सकता है। ठीक है। इस काम के पैसे मुझे पहले चाहिए, इस काम के पैसे मुझे पहले चाहिए। देखिए इस वीडियो से रिलेटेड ये अल्फाज नहीं है, ये जुमला नहीं है, लेकिन हमें याद आ गया इसलिए मैं इसमें इसको इस्तेमाल कर दिया। हाँ, कि आदमी कोई काम करता है तो जाता है काम करने, तो आदमी पहले कह देता है कि इसका ये काम करूँगा लेकिन इसका पैसा हमको पहले चाहिए। तो अरबी में कैसे कहेगा, इस काम के पैसे मुझे पहले चाहिए, तो इसको कहेगा हाजा शुगुल, हाजा शुगुल अव्वल फ्लूस अबगा, हाजा शुगुल अव्वल फ्लूस अबगा, यानी इस काम के पैसे मुझे पहले चाहिए। हाजा का मतलब इस होता है, यह होता है, इस होता है। ठीक है, यह के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए भी इस्तेमाल करते हैं। शुगुल का मतलब काम होता है, काम का दूसरा अरबी अमल भी होता है। अव्वल मतलब पहले होता है, तो इस काम के पैसे मुझे पहले चाहिए। दूसरा है यही चीज़ ना, हाजा शुगुल अव्वल फ्लूस लाजिम। दूसरा यही चीज़ को, यही तर्जुमा यही है सिर्फ, लेकिन अरबी बदल जाएगा। कैसे, हाजा शुगुल अव्वल फ्लूस लाजिम, हाजा शुगुल अव्वल फ्लूस लाजिम, यानी इस काम के पैसे मुझे पहले चाहिए। हाजा शुगुल अव्वल फ्लूस लाजिम, अव्वल फ्लूस लाजिम, यानी इसका तर्जुमा होता है इस काम का मुझे, इस काम का पैसा पहले ज़रूरी है। ठीक है, तो मतलब वही होता है इस काम के पैसे मुझे पहले चाहिए, यानी हाजा शुगुल अव्वल फ्लूस लाजिम। हाजा शुगुल अव्वल फ्लूस लाजिम, लाजिम का मतलब ज़रूरी होता है। तो अगर आपको लेना ज़रूरी है तो आप पहले कह सकते हैं कि हाजा शुगुल अव्वल फ्लूस लाजिम, इस काम के पैसे मुझे पहले चाहिए, या हाजा शुगुल अव्वल फ्लूस अबगा, इस काम के पैसे मुझे पहले चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से छोटे छोटे अल्फाजों को जोड़कर सेंटेंस बनाते हैं, है ना। तुम बार बार यहाँ क्यों आते हो, आदमी कहता है ना तुम बार बार यहाँ क्यों आते हो। कोई आदमी तो कहा जाता है तुम बार बार यहाँ क्यों आते हो, मत आया करो। तो आदमी अरबी में कहेगा इंतहिना, इंतहिना मर्रा मर्रा लेस इजी, इंतहिना मर्रा मर्रा लेस इजी, यानी तुम बार बार यहाँ क्यों आते हो, तुम बार बार यहाँ क्यों आते हो। इंतहिना, इंतहिना मर्रा मर्रा लेस इजी, लेस इजी, लेस का मतलब होता है क्यों, लेस का मतलब क्यों होता है। इंतहिना मर्रा मर्रा लेस इजी, यानी तुम बार बार यहाँ क्यों आते हो, तुम बार बार यहाँ क्यों आते हो। आदमी किसी को कहता है, मना करना होता है तो कहा जाता है तुम बार बार यहाँ क्यों आते हो। अना कलाम नहना माँ सबा सबा सकन, अना कलाम नहना माँ सबा सबा सकन, यानी मैंने कह दिया हम साथ साथ नहीं रहेंगे। आदमी किसी को कहेगा ना, कहा जाता है हम साथ साथ नहीं रहेंगे, तो आदमी कहता है मैंने कह दिया, मैंने कह दिया हम साथ साथ नहीं रहेंगे या नहीं रह सकते। तो आदमी क्या कहेगा अरबी में, अना कलाम, यानी मैंने कह दिया। नहना मतलब हम, नहना मतलब हम, माँ सबा सबा, यानी साथ साथ नहीं, सकन मतलब रह सकते, हम साथ साथ नहीं रह सकते। अना कलाम नहना माँ सबा सबा सकन, मैंने कह दिया हम साथ साथ नहीं रह सकते। कलाम के जगह पे आप गुल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कलाम के जगह पे आप गुल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अना गुल नहना या नहनु माँ सबा सबा सकन, यानी मैंने बोल दिया, मैंने बोल दिया कि हम साथ साथ नहीं रह सकते। नहना माँ सबा सबा लहालो लहालो तस्कुन, नहना या नहनु या अहना, नहना नहनु अहना, ये तीनों एक ही अल्फाज हैं, इसको अलग अलग लोग बोलते हैं। कोई नहना कहता है, कोई नहनु कहता है, कोई अहना कहता है। ठीक है, तो नहना माँ सबा सबा लहालो लहालो तस्कुन,
यानी हम साथ साथ नहीं अलग अलग रहते हैं, हम साथ साथ नहीं अलग अलग रहते हैं। लहालो लहालो मतलब अलग अलग और सबा सबा मतलब साथ साथ। तो हम साथ साथ नहीं रहते, लहालो लहालो यानी अलग अलग रहते हैं, लहालो लहालो यानी अलग अलग रहते हैं। नहना मा सबा सबा लहालो लहालो। तस्कुन, तस्कुन की जगह पे आप सकन भी लगा सकते हैं, तस्कुन भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो नहना मा सबा सबा लहालो लहालो तस्कुन, हम साथ साथ नहीं अलग अलग रहते हैं, हम अलग अलग। ताल का मतलब आओ होता है, किसी को बुलाना हो तो कहेंगे ताल। जैसे ताल हिना यानी इधर आओ, ताल हिना यानी इधर आओ। ताल इजलिस, ताल इजलिस यानी आओ बैठो, ताल इजलिस आओ बैठो। ताल का मतलब आओ, इजलिस का मतलब बैठो। ताल इमसी, ताल इमसी आओ चलें, ताल इमसी आओ चलें। ताल सूफ, ताल सूफ यानी आओ देखो, ताल सूफ यानी आओ देखो। ताल शील, ताल शील यानी आओ ले लो, आओ ले लो या आओ उठा लो। शील का मतलब ले लो होता है, लेना होता है, और उठाने के लिए भी शील का इस्तेमाल करते हैं। तो ताल इमसी यानी आओ चलें, ताल सूफ आओ देखो। सूफ का मतलब देखो होता है, इमसी का मतलब चलो होता है। इमसी को चलने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और शील का मतलब ले लो या उठा लो के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ताल इमसी आओ चले, ताल सूफ आओ देखो, ताल शील आओ ले लो। इस तरह से हम ताल को जहाँ चाहे वहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। ताल इमसी हदीका, एग्ज़ाम्पल के तौर पे अब हम किसी से अगर कहना होगा कि चलो पार्क में चलते हैं, चलो गार्डन में चलते हैं, या चलो कहीं चलते हैं, तो आदमी क्या कहेगा? तो एग्ज़ाम्पल के तौर पे ताल इमसी हदीका, ताल इमसी हदीका। ताल का मतलब आओ, इमसी का मतलब चले होता है, और हदीका गार्डन को कहते हैं, गार्डन को, पार्क को हदीका कहते हैं। हदीका का मतलब गार्डन, पार्क होता है। अब छोटा गार्डन है, बड़ा गार्डन है, तो आदमी उस तरह से सगीर और कबीर इस्तेमाल उसमें कर सकता है। तो ताल इमसी हदीका यानी आओ गार्डन में चलें, आओ गार्डन में चलें, आओ पार्क में चलें, कुछ भी इसका हम तर्जुमा कर सकते हैं। ताल इमसी हदीका, ताल इमसी हदीका। दोस्तों एक चीज़ मैं बताऊं कि कोई भी सामान हो, उसको अगर छोटा और बड़ा है तो उसमें हम कबीर और सगीर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक। ताल अगरात सूफ, ताल, ताल का मतलब आओ, अगरात का मतलब सामान होता है। दोस्तों अरबी लोगों से अगर हम सामान भी कह देंगे ना, तो भी अरबी लोग जानते हैं। बहुत कुछ लोग हैं जो नहीं जानते होंगे, लेकिन बहुत से लोग हैं जो जानते हैं। हमारा कफ़ील है, वो सामान भी कहता है और अगरात भी कहता है, दोनों के लिए वो दोनों इस्तेमाल करता है, ठीक। सूफ का मतलब देखो होता है, सूफ का मतलब देखो होता है। तो ताल अगरात सूफ आओ सामान देखें। किसी से कहना होता है कि आओ ये चीज़ देखें, या सामान देखें, या यह देखें, कुछ भी आदमी कहता है ना, किसी को कुछ दिखाना होता है तो कहता है आओ सामान देखें, या आओ यह चीज़ देखें। तो एग्ज़ाम्पल के तौर पे ताल अगरात सूफ आओ सामान देखें। कहीं आदमी जाता है मार्केट में तो कहते हैं कि आओ सामान देखें। तो ताल अगरात सूफ आओ सामान देखें। इस तरह हम ताल अगरात सूफ को इस्तेमाल कर सकते हैं। ताल हाज़ा शील, ताल हाज़ा शील, इसमें जो भी अल्फाज है, छोटे छोटे लफ्ज़ हैं, उस लफ्ज़ों का मतलब आप जानते होंगे। अगर आप हमारे सारे वीडियो देख चुके हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह आप अब तक सारे अल्फाजों का मतलब सीख चुके होंगे। बस अगर अल्फाजों को जोड़कर जुमला बनाना नहीं आता है, तो इसके लिए हम ये वीडियो बनाते हैं, ठीक, कि किस तरह से किस अल्फाज को कहाँ इस्तेमाल करेंगे, कैसे जोड़ेंगे, कैसे बात करेंगे, ठीक है। तो ताल हाज़ा शील, ताल का मतलब आओ होता है, हाज़ा का मतलब यह होता है या इस होता है, शील का मतलब ले लो या उठा लो। तो ताल हाज़ा शील आओ यह ले लो, या यह उठा लो, या आओ इसे उठा लो, या आओ इसे ले लो,
इस तरह के लिए हम ताल हाजा शील का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ताल हाजा शील, आओ इसे ले लो या यह उठा लो। ताल इंतहाजा अक्किल, ताल इंतहाजा अक्किल। ताल का मतलब आओ होता है, ताल का मतलब आओ होता है, इंता का मतलब तुम होता है, तुम होता है, आप होता है। दोस्तों बहुत से लोग हैं जो इंता भी बोलते हैं और अंता भी बोलते हैं। इंता अंता दोनों इस्तेमाल होता है आप या तुम के लिए। अगर लेडीज़ के लिए इस्तेमाल करेंगे तो इंती कहेंगे, इंती। ठीक, तो ताल इंतहाजा, हाजा का मतलब यह, और अक्किल का मतलब खाना, अक्किल का मतलब खाना। तो ताल इंतहाजा अक्किल, आओ तुम यह खा लो या आओ तुम इसे खा लो। हाजा यह या इसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ताल इंतहाजा अक्किल, आओ तुम यह खा लो या आओ तुम इसे खा लो। आदमी कोई चीज़ खाना दिखाता है किसी को और कहता है आओ तुम इसे खा लो या यह खा लो। ठीक, ताल इंतहाजा अलबास, ताल इंतहाजा अलबास। ताल का मतलब आओ होता है, अभी मैंने बताया। इंता या अंता का मतलब तुम या आप होता है। हाजा का मतलब यह या इस होता है या इसे होता है। ठीक, अल्बास पहनने को कहते हैं, कपड़ा पहनना है या जूता चप्पल पहनना है, कुछ भी है तो उसको अल्बास कहते हैं। ठीक है, पहनने को अल्बास कहते हैं। तो ताल इंतहाजा अल्बास, ताल इंतहाजा अल्बास, आओ तुम यह पहन लो, आओ तुम यह पहन लो या आओ तुम यह इसे पहन लो, दोनों के लिए इस्तेमाल होगा। आओ तुम यह पहन लो या आओ तुम इसे पहन लो, ये दोनों तर्जुमा इसका होगा। ताल इंतहाजा अल्बास का मतलब आओ तुम इसे पहन लो या आओ तुम यह पहन लो। ठीक है, बहुत से वीडियो हैं, बहुत से चैनल हैं जिस पर समझाते हैं, बताते हैं लोग। भाई मैं भी वीडियो देख कर के ही सीखा हूँ ज़्यादा, है ना, लेकिन हमारे ख़्याल से इस तरह से मैंने किसी वीडियो को नहीं देखा है जो हिंदी में लोग बनाते हैं और इतने अच्छे से या आराम से समझाते हैं। तो दोस्तों आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं या पुराने हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बराए मेहरबानी भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो ताल अना शो या इन तासूफ, ताल अना शो या इन तासूफ। आदमी कहता है आओ मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ, आओ मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। ताल अना सोया इन तासुफ, ताल का मतलब आओ, अना का मतलब मैं, सोया का मतलब कुछ होता है, कुछ या थोड़ा या के लिए आदमी कम या थोड़ा या कुछ के लिए इस्तेमाल करता है सोया। इंता का मतलब तुम, सूफ का मतलब दिखाता हूँ। तो ताल अना सोया इन तसूफ, आओ मैं तुमको कुछ दिखाता हूँ। हाजा गबल, हाजा गबल माफ़ी इन तसूफ, हाजा गबल, हाजा गबल या कबल। अरबी में कबल लिखा जाता है काफ बा और लाम, बड़ा काफ बा और लाम, तो कबल होता है, लेकिन लोग बोलने के लिए गबल बोलते हैं। आप कबल बोलेंगे तो भी लोग समझेंगे, गबल बोलेंगे तो भी लोग समझेंगे। तो हाजा कबल, हाजा को लोग हादा भी बोलते हैं। ठीक है, हादा भी बोलते हैं, हादा भी बोलते हैं। हाजा कबल माफ़ी इन तसूफ या हाजा गबल माफ़ी इन तसूफ, इससे पहले तुमने नहीं देखा है, इससे पहले तुमने नहीं देखा है। हाजा मतलब इससे, गबल मतलब पहले, और इंता का मतलब तुम, माफ़ी का मतलब नहीं है, और सूफ का मतलब देखा। हाजा गबल माफ़ी इन तसूफ, इससे पहले तुमने नहीं देखा है। ताल हुआ अमसिक, ताल हुआ अमसिक, आदमी कोई भाग रहा होता है या किसी चीज़ को पकड़ना होता है तो आदमी कहता है किसी से कि इसे पकड़ो, आओ इसे पकड़ो, हाँ, या इसको पकड़ो। आदमी कुछ पकड़ना होता है तो कहता है। तो ताल हुआ अमसिक, ताल हुआ अमसिक, आओ उसको पकड़ो या आओ उसको पकड़ो या आओ उसे पकड़ो। ठीक, इस तरह के लिए हम ताल हुआ अमसिक को इस्तेमाल करते हैं। ताल हुआ अमसिक, आओ उसको पकड़ो या आओ उसे पकड़ो। हुआ का मतलब वह होता है, वह, उस, उसको के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ताल हुआ अमसिक,
आओ उसको पकड़ो, आओ उसको पकड़ो। इस तरह से हम छोटे छोटे अल्फाजों को जोड़ करके और एक जुमला बनाते हैं। इसी तरह से आप भी जुमला बनाएं। आप इसको कॉपी पर लिख करके हिंदी में या उर्दू में लिखिए और उसके बाद उसका अरबी में तर्जुमा कीजिए। ठीक है। हुआ इन्हास, हुआ इन्हास, वह भाग रहा है। हुआ इन्हास, वह भाग रहा है। हुआ का मतलब वह होता है, इन्हास भागने को कहते हैं। कोई अगर भागता है या भाग रहा है तो उसको हुआ इन्हास बोलेंगे। हुआ इन्हास, हुआ इन्हास। हुआ का मतलब वह या उस होता है, इन्हास का मतलब भागना है। इन्हास भागने के लिए इन्हास इस्तेमाल करते हैं, तो वह भाग रहा है। दोस्तों मैं हर वीडियो में एक एक अल्फाज ज़रूर हर सेंटेंस में अलग अलग अल्फाज में इस्तेमाल करता हूँ ताकि उसका मतलब भी आपको मालूम हो सके। इन्हास ऐसा अल्फाज है कि बहुत कम लोग जानते हैं। इन्हास मतलब भागने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। तो हुआ इन्हास, वह भाग रहा है। हुआ इन्हास, वह भाग रहा है। वह भाग रहा है, कोई भी भाग रहा है, आदमी भाग रहा है, जानवर भाग रहा है, तो उसके लिए इस्तेमाल करेंगे। ताल कुल्लु सुगुल खल्लास सवी, ताल कुल्लु सुगुल खल्लास सवी, यानी आओ सारा काम ख़त्म करते हैं। आओ सारा काम ख़त्म करते हैं। ताल कुल्लु सुगुल खल्लास सवी, यानी आओ सारा काम ख़त्म करते हैं। कैसे कहेंगे? आओ सारा काम ख़त्म करते हैं। ताल का मतलब आओ, कुल्लू का मतलब सब या सारा, सुगुल का मतलब काम। देखिए काम को अमल भी कहते हैं, काम को अमल भी कहते हैं, सुगुल भी कहते हैं। ठीक। ख़त्म करने को खल्लास कहते हैं, ख़त्म करने को खल्लास कहते हैं। सवी मतलब करते हैं, करने को सवी कहते हैं। तो ताल कुल्लु सुगुल खल्लास सवी, आओ सारा काम ख़त्म करते हैं, आओ सारा काम ख़त्म करते हैं। इस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक। तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।